Assalamu alaikum. Today we are going to see about topic of second year biology federal board, also included I think so in second year Peshawar board, muscular dystrophy. Muscular dystrophy means wasting away of muscles. It is a genetic disease and transfer from generation to generation. One of the type of the muscular dystrophy is Duchenne muscular dystrophy. Duchenne muscular dystrophy mean it is very common genetic disease. In this disease there is wasting of muscles. Muscles जो होते हैं बोन के साथ जुड़े नहीं रहते. मसल्स आहिस्ता आहिस्ता यूँ लगता है कि जैसे जिस्म से बिल्कुल ख़त्म हो रहे हैं, ज़ाया हो रहे हैं. Duchenne muscular dystrophy, wasting of muscles from the body. You know that movement and locomotion is possible only due to coordination of the muscles and bones. If muscles are wasted, then because of this, people are unable to move or locomote. Muscular dystrophy, Duchenne muscular dystrophy, common disease, sex-linked disease, and it follow from generation to generation in a zigzag way. Zigzag way का मतलब क्या होता है? That's from father to daughter and from daughter to her son. The gene for this disease is located on the X chromosome. The daughter carry the X chromosome from mother as well as from father. माँ और बाप दोनों से बच्ची जो है वो लेती है एक्स क्रोमोसोम. तो बाप के एक्स क्रोमोसोम पे जब ये जीन लोकेटेड होगा, ये डिफेक्टिव जीन, तो वो कैरियर हो जाएगी, कैरियर ऑफ द डिज़ीज़. क्योंकि दूसरा उसका एक्स क्रोमोसोम जो उसने माँ से लिया है बच्ची ने, तो वो नॉर्मल होगा. So carrier mother then transferred this disease, muscular dystrophy, Duchenne muscular dystrophy, to her son. As the gene is recessive, ये याद रखना, gene for Duchenne muscular dystrophy is recessive, located on X chromosome. That's why common in males. कभी कोई पूछे कि those diseases which are the gene for diseases whose genes are located on the X chromosome, why is common in males? मेल में इसलिए कॉमन होता है कि मेल के पास सिर्फ एक ही एक्स क्रोमोसोम होता है. तो अगर वही डिफेक्टिव हो, उसी पे कोई डिफेक्टिव जीन हो किसी बीमारी का, तो डेफिनेटली विल बी द सफरर ऑफ द डिजीज़. मेल विल बी द सफरर ऑफ द डिजीज़. सो this disease, Duchenne muscular dystrophy, wasting of muscles, is also common in males because gene is recessive and is located on the X chromosome. What are the symptoms? देखते हैं symptoms क्या हैं. Symptom of the child suffering with suffering with Duchenne muscular dystrophy appear in early childhood. बच्चा खड़ा ही नहीं हो सकता है. खड़ा होने की कोशिश करता है, जैसे बच्चा 9 मंथ का खड़ा हो जाता है, लेकिन ये वो बच्चा जो सफरिंग विद डचनी मस्कुलर डिस्ट्रॉफी खड़ा नहीं हो सकता. अपीयर इन अर्ली चाइल्डहुड एंड चाइल्ड फील डिफ़िकल्टी इन स्टैंडिंग अप ऑफ द ग्राउंड. क्या होता है? व्हेन द चाइल्ड इज़ ऑफ 12 ईयर तक पहुंचता है, बाय द एज ऑफ द 12 ही इज़ बाउंड टू रिमेन ऑन द व्हील चेयर. Because all the muscles of the bodies are wasting in the Duchenne muscular dystrophy, so child feel difficulty in the breathing. बहुत मुश्किल से कोई पेशेंट जो कि सफ़र कर रहे होते हैं डचनी मस्कुलर डिस्ट्रॉफी से, बहुत मुश्किल से पहुंचते हैं अप टू एज ऑफ 20. ज़्यादातर की डेथ हो जाती है. वट इज़ अ जेनेटिक रीज़न? चूँकि ऊपर भी बता चुके हैं हम. इट इज़ ड्यू टू रिसेसिव जीन लोकेटेड ऑन एक्स क्रोमोसोम. जीन डिस्कवर्ड फॉर दिस डिजीज़. जो नॉर्मल पर्सन होते हैं उनमें एक जीन जो होता है लोकेटेड ऑन एक्स क्रोमोसोम, नॉर्मल जीन, इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मेशन ऑफ अ डिस्ट्रोफिन प्रोटीन.
लेकिन वो बच्चे जो सफ़र करते हैं डचनी मस्कुलर डिस्ट्रॉफी से, उनमें ये जीन डिफेक्टिव होता है या एब्सेंट होता है, तो सो अनेबल टू प्रोड्यूस द डिस्ट्रोफिन प्रोटीन विच मेक द मसल्स strong. So because of absence of this absence of this gene and absence of dystrophin protein are due to defective gene which is unable to produce the dystrophin protein, क्या होता है कि कैल्शियम आयंस लीक आउट हो जाते हैं सेल में, एंजाइम्स को तेज करते हैं, प्रमोट द एक्शन ऑफ एंजाइम्स। और एंजाइम्स क्या करते हैं कि अपने ही बॉडी प्रोटीन को खाना शुरू कर देते हैं, मीन डिज़ोल्व द मसल्स फाइबर। मैंने ट्राई की है ये बताने के लिए। ऊपर देखें, अगर आप ये चेक करें तो ये बच्चा ये सफरिंग विद द मस्कुलर डिस्ट्रॉफी खड़ा होने की कोशिश कर रहा है, लेकिन खड़ा नहीं हो पाता। ये देखो, अगर खड़ा हो भी तो इस तरह फिर खड़ा होगा। तो चूँकि हमने ऊपर देखा है कि मेजॉरिटी ऑफ द children suffering with this disease die at the age of 20. So genetic disease है। आप ज़रा अगर ये वीडियो देखें तो देखें, कमेंट में बता दें कि आपको को ये फ़ायदा देगी वीडियो, तो फिर मैं आगे आप लोगों के लिए सेक्स लिंक डिजीज़, हीमोफीलिया वगैरह जो है वो करूं। ये मेरे ख़्याल से आप लोगों के एग्ज़ाम, जो सेकेंड ईयर के बच्चे एग्ज़ाम दे रहे हैं अभी, उनके लिए भी फ़ायदेमंद है कि पॉइंट्स में लिखना होता है। अगर जो बच्चा पॉइंट में लिखता है पेपर में, उसके लिए बहुत मार्क्स गेन करना आसान होता है। तो जो कोई वीडियो ये देखे तो वो मुझे बता दे कमेंट में प्लीज़ कि डू यू नीड ऐसी वीडियोस जो कि आपको पेपर में भी इंशाल्लाह ताला मार्क्स गेन करने में हेल्पफुल होगी, और आगे MD-CAT में भी कोई एक पॉइंट आध पॉइंट जो है वो इजी हो जाएगा। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।